رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، اور محمد آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایک نعبد و ایک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائے مالکان عزت آج کے ذکر کو سننے والے تمام ناظرین اور تمام سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس ذکر کے جتنے فیوز و برکات ہیں میرا مالک ان کو جناب سید آفتاب زیدی صاحب، ان کے خانوادہ، میرے مالک ان کے مرحومین اور ناظرین کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. میرا مالک ایک مومنہ سیدہ ام رباب رضوی، معراج بی بی، حیدر قرار، میرا مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. مومنین آج کی اس مجلس میں حاضر موجود ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرمائے. میرا مالک ہمیں آخری سانس تک امیر المومنین کی ولایت پہ قائم فرمائے. الہی آمین. جیسا کہ پچھلی 2 مجالس میں مسلسل تاریخ اور ہسٹری سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں کہ پتہ چلے کہ اسلام کو اتنا نقصان کافر نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان منافق نے پہنچایا. اور آج بھی اسلام کو اتنا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں جتنا خطرہ اندرونی طاقتوں سے ہے. جب لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلوا کے اور پھر اسلام کے ساتھ کوئی گھنونا کھیل کھیلتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جس وقت کو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے ہسٹری سے یہ پڑھا کہ مکہ کا دور، مدینہ کی ہجرت، بدر اور احد، اس میں چھان باریک ہوتا گیا اور منافق ظاہر ہوتے چلے گئے. منافقین کی ایک کثرت جو کہ مسلمانوں میں داخل ہو چکی تھی اور اللہ کو قرآن میں ان کے لیے ایک پوری صورت اتارنی پڑی. میں نے آپ کو پچھلی 2 مجالس میں بتایا تھا اور آخری جو مجلس ہے اس میں بات اس نتیجے تک پہنچی تھی کہ اللہ جسم نہیں رکھتا تھا، رسول تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اللہ کے دشمنوں کو بھی علی مار رہے تھے، رسول کے دشمنوں کو بھی علی مار رہے تھے. لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھیل رہا تھا اور دشمنی علی ولی اللہ کی بڑھ رہی تھی. لا الہ کا دشمن بھی اصل میں ولایت علی کا دشمن تھا، محمد رسول اللہ کا دشمن بھی حقیقت میں ولایت علی کا دشمن تھا. حتیٰ کہ خندق، خیبر، یہ تمام مارکے، مباہلہ، یہ تمام مارکے اسلام نے
सरजद हो चुके। इन तमाम मामलात को बखूबी रसूल ने हुक्म परवरदिगार के तहत बजा लाए। अब मुनाफिकीन की एक कसीर तादाद है जो मुसलमानों में इस हद तक रासिक कर चुकी है कि जब रिसालत माब मदीना से दोबारा फतह मक्का की गर्ज से मक्का पहुंचते हैं तो यहाँ हमें हिस्ट्री में दो किरदार नजर आए। अगर आप इब्तदा में तमहीद में इन दो किरदारों को देख लेंगे तो इसके बाद बात बड़ी अच्छी तक वाज़े हो जाएगी। जनाब रिसालत माब के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और अबू सुफियान ये मक्का की एक चोटी पे खड़े होकर रसूल के लश्कर को देख रहे थे। अबू सुफियान ने हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मुबारक हो, तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना ली। इतना जुमला कहना था, ये हजरत अब्बास मुस्कुरा के कहते ये हुकूमत नहीं, ये रिसालत है। जुमले नहीं थे, ये दो नजरियात थे। यानी कि एक नजरिया वो था जो रिसालत को हुकूमत समझ रहा था, एक नजरिया वो था जो रिसालत को रिसालत समझ रहा था। यही फतह मक्का से ये दो नजरियात जन्म लेके आगे बढ़ रहे थे। एक वो जिन्होंने नबी के दीन को हुकूमत समझ लिया और वो चाहते थे कि हम हुकूमत के लालच में आकर हुकूमत की वजह से मज़हब इस्लाम को कबूल करें। यही वजह थी कि बाद रसूल लोगों ने रसूल की नबूवत को बादशाहत और मलूकियत में तब्दील कर दिया, रसूल की नबूवत को बाद में तख्त और ताज में तब्दील कर दिया। जबकि अल्लाह का ये बनाया हुआ कानून है कि खुदा की हुज्जत के लिए तख्त और ताज कोई अहमियत नहीं रखता। कोई जरूरत नहीं है कि तख्त और ताज हो तो फिर वो नबी होता है। हजरत आदम दुनिया में पहले हादी बन के आए थे, बगैर तख्त और बगैर ताज के आए थे। खुदा चाहता हजरत आदम को जाहो जलाल तख्त लश्कर दे सकता था, लेकिन खुदा चाहता तो ये तख्त दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर खुदा हजरत आदम को तख्त और ताज दे देता तो फिर क़यामत तक असूल बन जाता, जिसके पास तख्त होता वो अल्लाह का खलीफा बन जाता, जिसके पास ताज होता वो अल्लाह का खलीफा बन जाता। खुदा ने कहा मैं आदम को तख्त और ताज नहीं दूंगा, लेकिन मैं आदम एक इनफरादियत रख दूंगा। मेरे मालिक वो क्या इनफरादियत है? फरमाया मैं आदम को फरिश्तों से सजदा करवा दूंगा। अब क़यामत तक अगर मेरा खलीफा देखना हो तो ये ना देखना कि तख्त पे कौन बैठा है, ये देखना कि फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा है। जिसके दरवाजे पे फरिश्ता आ रहा हो तो समझ लेना कि ये अल्लाह का सच्चा खलीफा है। यही वजह है कि जब अमीर अल मोमिनीन से एक शख्स ने पूछा या अली आपसे हुकूमत छीन लीगी, क्या कहने अमीर अल मोमिनीन तेरे जवाब के मैं जिंदगी कुर्बान करूं। अबू तालिब का बेटा आपके जवाब पे जब कहा गया या अली आपसे हुकूमत छीन ली गई, अली मुस्कुरा के कहने लगे जिसने छीनी है क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है? फरिश्ता तो आज भी हमारे दरवाजे पे आ रहा है, इख्तियारात तो अली के पास आज भी वही हैं। कौन सा वो इख्तियार है जो अमीर अल मोमिनीन से छीन लिया गया है? यही वजह है कि अमीर अल मोमिनीन के बाद जब हुकूमत तकसीम हो रही थी, जब आपस में तख्त और ताज को तकसीम किया जा रहा था, तो यहाँ पे जो मुसलमानों के जो एक जमहूर है मुसलमानों का, जिनके यहाँ खिलाफत को मोतबर समझा जाता है, तो मैं दुनिया की हर गोशे में मैंने ये अपील की है कि जो खिलाफत को मोतबर समझते हैं पहले ये बताएं कि बाद रसूल ये जो खलीफा बना ये कैसे बना था। वो कहते अजमाई उम्मत के साथ, उम्मत इस जमा हुई थी वोटिंग के साथ, पहला खलीफा चुन लिया था, क्योंकि रसूल जाहिरी तौर पे किसी का ऐलान नहीं करके गए थे। अब इसका मतलब है कि एक इमामत का नजरिया, एक खिलाफत का नजरिया, एक रिसालत वाला नजरिया, एक हुकूमत वाला नजरिया। हुकूमत वाला नजरिए में हाकिम कैसे बना, खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे बना था? खलीफतुल मुस्लिमीन बना था वोटों के साथ। वो वोटों के साथ कैसे बना? इसमें तमाम अहले सुन्नत जितना लिटरेचर है सब ने ये लिखा है कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद किया और बुलंद करके लोगों से कहा कि ये नबी के बाद बुजुर्ग हैं, मोतबर हैं, मैं भी इनकी बैत करता हूं, आप भी इनकी बैत करें। तो लिहाजा यहां से इन मुसलमानों का पहला खलीफा चुन लिया गया। तो एक नजरिया है सकीफा में बना, एक नजरिया है जो गदीर में नजर आ रहा है, एक का ऐलान 1.25 लाख सहाबियों में हुआ, एक का ऐलान 40 सहाबियों में हुआ, एक का ऐलान सकीफा बनी सआदा में हुआ, एक का ऐलान गदीर में हुआ, एक का हाथ सहाबी ने पकड़ के बुलंद किया, एक का हाथ नबी ने पकड़ के बुलंद किया। अब हमें सिर्फ इतना बताइए कि कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब है?
अगर कुरान में अताअत अगर कुरान में अताअत नबी की वाजिब है तो फिर यकीनन नबी के हाथ का बनाया हुआ खलीफा ठीक। अब जब हम बात को आगे लेके बढ़ते हैं कि फिर मुनाफिकीन की साजिशें भी खुल के सामने आ रही थी। ले जी, बहुत बड़ा तारीखी हवाला, बहुत एक अहम तारीखी हवाला आपकी समातों को हदिया करने लगा। गज़वे तबूक पे जाने के लिए रिसालत इमाम जब घर से निकले और मदीना छोड़ा रिसालत इमाम ने, तो रिसालत इमाम मदीना से निकलते हुए ये वाहिद गज़वा था जिसमें रसूल अमीर अल मोमिनीन को साथ नहीं लेके गए थे। अमीर अल मोमिनीन को बच्चे क्योंकि तशरीफ फरमाए, बच्चों के लिए बात बताओ, जिस जंग में नबी साथ जाते थे उन्हें अरबी में गज़वा कहा जाता है। रिसालत इमाम खुद गए हैं तबूक के गज़वा के लिए, लेकिन अमीर अल मोमिनीन को साथ नहीं लेके गए। अब ये तारीखी एक बहुत बड़ा रेफरेंस है, अगर आप इसे महफूज कर लेंगे तो ये आपको हर जगह बहस में काम आएगा। रिसालत इमाम, और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ शिया किताबें, तरफैन की किताबों ने इसे बिल्कुल इसी तरीके से लिखा है। इसके सैकड़ों दलाइल आप उससे ले सकते हैं। जब रिसालत इमाम मदीना से निकले और अमीर अल मोमिनीन को मदीना छोड़ के रिसालत इमाम तबूक के गज़वा के लिए निकले, तो सहाबा इकराम की एक कसीर तादाद ने रिसालत इमाम से इस्तफसार की वजाहत मांगी कि इस गज़वा में अमीर अल मोमिनीन को क्यों नहीं लेके जा रहे। फरमाया हुक्म परवरदिगार है कि अली को साथ नहीं लेके जाएंगे। रसूल क्या करने लगे, अल्लाह और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि जो मुसलमानों के अंदर मुनाफिक आ गए अब इनको जाहिर करें। अब मुनाफिकीन के बज़ाहिर इनको जाहिर करने का पहला लम्हा है, लिहाजा इसे आप गौर से समाअत फरमाइएगा। रिसालत इमाम गज़वा तबूक के लिए जाते हैं, वो गज़वा ना होना था ना हुआ। रिसालत इमाम वापस पलट रहे हैं और उकबा की एक पहाड़ी है, एक घाटी है जहां से रिसालत इमाम को सफर करना है। 24 मुनाफिकीन जो है वो रसूल के लश्कर में, और 24 मुनाफिकीन ने आपस में ये मशवरा किया कि वाहिद मौका है कि जहां पे अली साथ नहीं है, तो लिहाजा इस मौके को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम इस पहाड़ी में रिसालत इमाम को माज़ल्ला कत्ल करें। कत्ल रसूल की साजिश हुई, कत्ल नबी का मंसूबा तैयार हुआ। बिल्कुल रात का वक्त हो गया, अंधेरा इतना ज्यादा छा गया कि आसमान पे तारे नजर नहीं आ रहे थे। एक खौफनाक रात हो गई। इतने अंधेरे और इतने खौफनाक रात को मुनाफिकीन ने अपने लिए मौका गनीमत समझा और रिसालत इमाम को कत्ल करने का बिल्कुल मंसूबा तैयार हुआ कि जब रिसालत इमाम उकबा की पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो हम रिसालत इमाम की सवारी को पहाड़ी से धक्का दे देंगे और बाद में कह देंगे कि ये हादसा हुआ था, रिसालत इमाम की सवारी का पांव फिसल गया और वो गिर गई, जिसकी वजह से माज़अल्लाह रसूल मारे गए। जब ये कत्ल का बिल्कुल मंसूबा तैयार हो गया तो अल्लाह ने कुरान में जो एक आयत भेजी है कि इन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह भी खुफिया तदबीर कर रहा था। बेशक अल्लाह से ज्यादा बेहतर तदबीर करने वाला कोई नहीं। बेशक खुदा ने रिसालत इमाम को हुक्म दिया कि मुनाफिकीन ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया है। तो एक दफा रिसालत इमाम ने कहा कि मेरे मालिक अब तो अली भी साथ नहीं। फरमाया वो अली साथ नहीं, लेकिन ये अली साथ है। रसूल के साथ दो ताकतें थी, या एक अली उल अजीम था और एक अली इब्ने अबी तालिब थे। फरमाया अगर आज वो अली नहीं है तो फिर ये अली है। आज हम आपको इनकी साजिशों से ऐसे बचाएंगे और इनकी साजिश को बेनकाब करेंगे। बस ये लम्हा ऐसा आना था कि बिल्कुल ऐन उकबा की पहाड़ी के करीब आके जब 24 मुनाफिकीन अपनी मुकम्मल तादाद के साथ बैठ गए तो रिसालत इमाम ने कहा कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले फरिश्ते ने आके वही के साथ अल्लाह का हुक्म सुनाया है कि जिब्रील अमीन कहते हैं कि खुदा कह रहे हैं कि बाकी आपका तमाम लश्कर पहाड़ी के नीचे से जाएगा और आप तन्हा पहाड़ी के ऊपर से जाएंगे। जब मुनाफिकीन ने रसूल का ये मंसूबा सुना तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, रात की तरीकी में ये पहाड़ी का सफर हम आपको तन्हा कैसे करने दे। फरमाया खुदा ने कहा तन्हा नहीं करना, जिन सहाबा को साथ लेके जाना है उनके नाम भी अल्लाह ने बता दिया। उन्होंने कहा कौन से सहाबा? फरमाया हुज़ैफा यमानी और सलमान मोहम्मदी। क्या बात है, ये दो सहाबा हैं जो मेरे साथ जाएंगे, लिहाजा इनको मैं साथ लेके जाऊंगा। और हुज़ैफा को रिसालत इमाम ने अपनी ऊंटनी के हाँकने के लिए एक कोड़ा, एक ताजियाना ऊंटनी को हाँकने के लिए दिया। हुज़ैफा कहते हैं कि मेरा बदन थरथरा गया क्योंकि रिसालत इमाम ने जिंदगी में कभी भी अपनी सवारी को ताजियाना नहीं मारा था। तो मैंने कहा जो अपनी सवारी को ताजियाना नहीं मारा था उसने हाँकने के लिए मुझे क्यों दिया? तो जिस सवारी पर रसूल बैठा होगा उसे मैं हाँकूंगा कैसे? हुज़ैफा कहते हुक्म रसूल के तहत मैंने उसको थाम लिया। रात की तरीकी थी, 24 मुनाफिकीन को पहाड़ी के नीचे से जाने को हुक्म दिया।
रिसालत इमाम ने सलमान मोहम्मदी के हाथ में महार दी और हुज़ैफा यमानी के हाथ में वो ताजियाना दिया। जब पहाड़ के ऊपर बिल्कुल रिसालत इमाम ने जाना शुरू किया तो 24 में से 14 मुनाफिकीन अपने चेहरे नकाब के साथ लपेट के रिसालत इमाम की ऊँटनी के पीछे दौड़े ताकि बिल्कुल वक्त में जाकर रसूल की ऊँटनी को गिराएं। जब उनकी ऊँटनियों के चलने की आवाजें आई तो रिसालत इमाम ने हुज़ैफा यमानी से कहा कि पीछे कोई आ रहा है, लिहाजा मैंने जो तुम्हें हाथ में ताजियाना दिया है इनकी सवारियों के मुंह पे मार ताकि ये वापस दौड़े। हुज़ैफा यमानी ने बिल्कुल हुक्म रसूल के तहत पीछे की तरफ पलटे और उनकी सवारियों के मुंह पे उस ताजियाने को मारना शुरू किया। मारते हुए ताजियाने को उनको ऊँटों को पीछे की तरफ दुड़ाया। दुड़ाने के बाद इतनी देर में रिसालत इमाम पहाड़ी को अबूर कर चुके थे। हुज़ैफा यमानी का फूला हुआ सांस और नबी के करीब आए। नबी ने फरमाया, हुज़ैफा क्या तुमने लोगों को देखा? फरमाया, लोगों के चेहरे रात की तरीकी में नकाब के साथ लिपटे हुए थे, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने उनके ऊँटों को पहचान लिया है, मैं उनकी सवारियों को पहचान गया। तो या रसूलल्लाह ये तो हमारे लश्कर के लोग हैं जो हमारे साथ मदीना से चले थे। रिसालत इमाम ने फरमाया, हुज़ैफा अगर तुम मदीना में जाके लोगों के नाम ले लेके बताओगे तो मक्का वाले कहेंगे कल जिन्हें मुसलमान करके ले गया था उन्हें मदीना में जाके कत्ल कर दिया, इस्लाम की तबलीग यहीं पे रुक जाएगी। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह फिर इन मुनाफिकीन को क्या सजा होनी चाहिए? फरमाया, हुज़ैफा यमानी क्या ये सजा काफी नहीं है? मैं तुम्हें ये नाम बता देता हूँ। लेकिन नाम बताने के बाद रिसालत इमाम ने फरमाया, अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर ये मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है। अब शवाहिद नबूवा अब्दुर्रहमान जामी तारीख इब्न खल्दून शिबली नुमानी जहां जहां से सुन्नी रेफरेंस चाहिए वह मदीने के लिए तैयार हो कि बहुत जय्यद सहाबा इकराम, कोई भी सहाबी मदीना में मरता था तो वो हुज़ैफा यमानी से जाके पूछते थे कहीं ये उकबा के मुनाफिकीन में से तो नहीं है। अब मेरा सवाल है कि आपने हिस्ट्री के साथ ये मुतालिया करना है, अगर हम नाम ना भी बताएं तो सिर्फ इतना पता कीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो दौरे रिसालत या दौरे इमामत में या दौरे अली में या दौरे मुस्तफा में मरते रहे लेकिन हुज्जत ने उनका जनाजा नहीं पढ़ाया। क्योंकि जनाजा है मगफरत की दुआ, अगर हुज्जत किसी के लिए मगफरत की दुआ कर लो तो फिर तो मगफरत वाजिब हो जाए। इसलिए मौला अमीर अल मोमिनीन का फरमान है, तुम हमारे शिया हो तो हमारे दुश्मन के जनाजों पे न जाओ, जाना पड़ भी जाए तो दुआ न करना, दुआ करनी पड़ भी जाए तो आमीन न कहना। अली कहते ऐसे ना हो कि तुम आमीन कहो और हमें बख्श न पड़ जाए। क्या मुनाफिकीन के जनाब से इज्तनाब ये वाहिद मौका था जिन्हें उकबा की पहाड़ी के मुनाफिकीन कहते हैं। आप इसे किसी भी किताब में सर्च करेंगे तो मुकम्मल बात खुल के सामने आ जाएगी कि वो कौन से मुनाफिकीन थे जिन्होंने रसूल को कत्ल करने की साजिश की थी। लिहाजा नाम खुल के सामने आ चुके थे। रिसालत इमाम वापस पहुंच गए हैं। इस्लाम के तमाम मराहिल तय करते करते आखिर वो मौका आ गया जहां से मैंने बात शुरू की थी। अगर आप पहली तकरीर की तरफ वापस पलटें तो बात हमारी शुरू हुई थी दावत जुल अशीरा से। अशीर से जो बात शुरू हुई थी अब मैं उसे गदीर में लेके आने लगा। अशीर में काफिर 40 आए थे हजरत अबू तालिब के घर, अगर आपको याद हो मैंने बताया 40 काफिर मुसलमान हुए और मुसलमान होने के बाद नबी के साथ ये सारा सफर करते रहे। लेकिन काफिर मुसलमान होते ही मुनाफिक हो गया और मुनाफिक का सफर करता 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 गदीर तक पहुंच गया। जब ये गदीर तक पहुंचे तो मुसलमानों में कसरत जो थी वो मुनाफिकीन की थी। जब गदीर में पहुंचे तो 7 जगहों पे आके हजरत जबरील ने अल्लाह का हुक्म रसूल को सुनाया कि खुदा कह रहा है बल्लिग मा उनज़िला अलैका, पहुंचा वो जो मैंने तुझ पे नाज़िल किया। 7 जगहों पे 7 मकामात पे आके हजरत जबरील ने रोका। रिसालत इमाम ने कहा अल्लाह से कह दे अगर मैंने अली की विलायत को पहुंचा दिया तो ये मजमा बिखर जाएगा। इसमें कसरत अली की विलायत के दुश्मन है। मैं मुसलसल 2 मजालिस में मेहनत कर रहा हूं, अब मैं नतीजा देने लगा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के दुश्मन अली वलीउल्लाह के दुश्मनी कर रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन अली वलीउल्लाह से दुश्मनी कर रहे थे। वो कलमा पढ़ रहे थे लेकिन दिलों में दुश्मनी अली की इसलिए थी कि बदर, ओहद, खैबर, खंदक में अमीर अल मोमिनीन ही सबसे आगे थे। मिसाल में आप जानते थे कि मैं अली की विलायत का ऐलान करूंगा तो मुनाफिक वापस पलट जाएंगे अपने दीन की तरफ। फरमाया मेरे मालिक ये मजमा बिखर जाएगा। 7 जगहों पे आगे जबरील ने कहा। नबी बार बार कहते रहे
میرے مالک اگر یہ پیغام پہنچایا تو مجمع بکھر جائے گا، پیغام پہنچایا تو مجمع بکھر جائے گا۔ 7 بار تو اللہ نے بھی محبت کے ساتھ اعلان کیا تھا، لیکن جب رسول نے کہا، عرفات کے میدان میں جبرائیل آئے، کتابیں کہتی ہیں، لیکن رسالت امام نے کہا ابھی رکیے، ابھی رکیے، ابھی رکیے، ابھی رکیے۔ ادھر غدیر کا چوک آیا، یا جبرائیل نے آگر رسول کی سواری کے مہار میں ہاتھ ڈال کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب اللہ کا جلال آ گیا ہے، خدا کہتا اگر اب تو نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو سمجھ لے تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ اب اگلی سطر میں کہوں، اگر آپ سوات کرنے کے لیے تیار، رسول نے فرمایا جبریل کہہ دے اللہ سے مجمع بکھر جائے گا۔ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے مجھے کثرت نہیں چاہیے، مجھے علی والے چاہیے۔ مجھے مجمع کی اکثریت سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ لوگ کتنے ہیں، مجھے یہ چاہیے کہ علی والے کتنے ہیں، حق والے کتنے ہیں۔ جب خدا کہتا ہے کہ کثرت کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ علی کہاں ہے۔ آج ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے، ہم بھی یہ نہیں دیکھتے کہ اکثریت کدھر ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے ولایت علی کدھر ہے۔ رسول نے پیغام پہنچا دیا، رسول نے کہا حکم خدا آ گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ کر کے دکھایا تو سمجھیے آپ نے کچھ بھی رسالت کا نہیں کیا۔ اب اس کے آگے جو آیت چلی ہے وہ آیت سماعت فرمائیے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت قرآن میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ خدا نے غدیر میں کہا کہ علی کی ولایت پہنچا دے، میں تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، اور اگر کوئی مکر گیا تو مکرنے دے، کیونکہ اللہ کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب میری 2 دن کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیجئے گا۔ یہ اشیر سے چلے تھے، یہ دعوت ذوالعشیرہ میں آئے تھے، انہوں نے نبی کی تائید کر لی، انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد انہوں نے نبی کے ساتھ شہر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ کے مدینہ آ گئے، نماز کا حکم آیا انہوں نے پڑھی، روزے کا حکم آیا انہوں نے رکھا، زکوٰۃ کا حکم آیا انہوں نے اپنے مال سے دی، جہاد کا حکم آیا، یہ تلواریں اٹھا کے نبی کے ساتھ جھاڑ گرمی پریشانی میں چلتے رہے، سفر نبی کے ساتھ کرتے تھے، جنگوں میں نبی کے ساتھ رہتے تھے، محفل میں نبی کی بیٹھتے تھے، صحبت پیغمبر میں وقت گزارتے تھے، نبی کے ساتھ اپنے دن اوقات بسر کرتے تھے۔ جنہوں نے اتنی دیر نبی کے کہنے پہ سارے اعمال بجا لائے اور نبی کے ساتھ چلتے رہے، آیتیں اترتی دیکھتے رہے، قرآن کی آیتوں کے نزول کو دیکھتے رہے، جو رسول کہتا گیا وہ کرتے گئے، لیکن پہنچتے پہنچتے کافر منافق کے روپ میں جب غدیر میں پہنچ گیا تو خدا نے ان کے چہرے سے منافق والا نقاب اتار کے خدا نے کہا اگر یہ علی کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ ان کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں اور تو کافر کہہ رہا ہے، یہ تو روزے رکھتے ہیں اور تو کافر کہہ رہا ہے۔ فرمایا میں نے بھی 23 سال کا دور اس لیے دکھایا تھا کہ 23 سال میں اگر انہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو پھر یہ دوبارہ کافر ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی ولی اللہ چھوڑنے سے بندہ صرف منافق نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے۔ یا پھر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو قرآن کی آیت آئی ہے کہ اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا اور کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا، غدیر میں کون تھا؟ وہاں تو کوئی کافر نہیں تھا، وہاں تو قریب کافروں کی بستی بھی کوئی نہیں تھی، وہاں تو کسی شریر کے شر کا خطرہ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کن کے لیے کہا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا؟ اس کا مطلب جو کافر مسلمان ہو کے منافق بنا تھا، اللہ نے علی کی وجہ سے انہیں دوبارہ پھر کافر کر دیا۔ کافر نے بڑا لمبا 23 سال کا دور منازل گزاری تھی منافق کی صورت میں، لیکن علی کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ دوبارہ پھر کفر کی وادی میں واپس چلے گئے۔ اور کافر نبی کی صحبت میں بیٹھ کے اگر نمازیں بھی پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک کافر آج بھی نماز پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک اگر آج بھی دیکھنا ہو کہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو تمیز کا نام صرف علی ہے۔ کیا بات ہے،
इम्तियाज का नाम सिर्फ अली है। अब इसके आगे आयत चली, जरा इसके आगे चलिएगा। खुदा फरमाते अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को अकमल कर दिया। आज दीन मुकम्मल हो गया। कहां, किस वजह से हुआ? इलाने विलायत अमीरुल मोमिनीन की वजह से। बेशक बेशक। अब मुझे बताइए, ये दीन क्या मक्का से शुरू हुआ था? नहीं, दीन हजरत आदम ने शुरू किया था। बेशक बेशक। मुकम्मल हुआ अली की विलायत पे आके। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हर नबी के दौर में शरीयतें बदली थी, दीन नहीं बदला था। बेशक। दीन एक ही था जो हजरत आदम के दौर से शुरू हुआ। दीन किस चीज का नाम है? दीन एक बाहर वाले सर्कल को कहते हैं, शरीयत उसके अंदर छोटे सर्कल को कहते हैं। अल्लाह एक है, दीन। खुदा ने हर नबी के दौर में, किसी नबी के दौर में खुदा नहीं बदला। नमाज के औकात बदले हैं, नमाज नहीं बदली। रोजे के महीने बदले हैं, अल्लाह के मोहब्बत में भूखा रहना नहीं बदला। दीन एक बुनियादी कानून का नाम है। खुदा ने कहा कि आज शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, आज दीन मुकम्मल हुआ। क्या कहने। साहिबान इल्म, इस दीन में 1.25 लाख नबी मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत आदम ने बड़ी मेहनत की, खुदा ने आदम को तकमील दीन की सनद नहीं दी। जनाब नूह ने सफीना बनाया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। हजरत इब्राहिम ने नारे नमरूद को गुलजार किया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। इस्माइल चूरी के नीचे से जिंदा निकल आए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। मूसा तूर पे खड़े होकर बातें करते रहे, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। मूसा ने दरिया में रास्ता बनाया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। हजरत याकूब यूसुफ की जुदाई में रोए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। क्या कहने। यूसुफ कैद खाना से निकल के आए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। बेशक। यहया, यूनुस, दाऊद, जकरिया, सुलेमान, कौन कौन सा नबी नहीं आया, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। हत्ता कि ईसा सूली पे चले गए, खुदा ने उसको भी यही कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। हद हो गई है, खुद नबी मक्का में आ गए, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। मक्का में शेब अबी तालिब बर्दाश्त की, खुदा ने दीन मुकम्मल नहीं किया। नबी ने पत्थर बर्दाश्त किए, खुदा ने दीन मुकम्मल होने की सनद नहीं दी। नबी ने कांटे बर्दाश्त किए, खुदा ने नहीं कहा कि तूने कांटे बर्दाश्त किए, मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। नबी अकेले नमाज पढ़ते रहे, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नबी ने हिजरत करके मदीना आए, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नबी ने मदीना में आके मस्जिद बनवाई, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। बदर का मार्का होया, ओहद की जंग हो गई, खैबर का दरवाजा हवा में उड़ गया, खद्द की घाटी को रसूल ने अपने लश्कर के साथ अली की ताकत के साथ फतह कर लिया। मुबाहला में रसूल तौहीद की गवाहियां पंजतर की सूरत में लेके चला गया। कायनात की सारी सच्चाइयां नबी ने मनवा ली। खुदा ने एक भी जगह पे आयत कह के नहीं भेजा कि दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। इधर खुम में गदीर में रसूल के हाथ पे इमामत का हाथ आया, रसूल ने मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला कहा। खुदा ने कहा अब दीन भी मुकम्मल हो गया, अब नेमतें भी तमाम हो गई। जो दीन आदम से लेके मुस्तफा तक बगैर अली की विलायत के मुकम्मल नहीं होता, तो तेरी 2 रकत की नमाज बगैर अली की विलायत के दीन की तकमील, दीन की अलीयुन वलीउल्लाह, दीन की प्राइमरी का नाम नहीं, दीन की मास्टर डिग्री को अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला मुनाफिक हो सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अंदर बूझ छुपा सकता है, लेकिन जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ ले, फिर ना उसका अकीदा तौहीद कमजोर होता है, ना उसका अकीदा रिसालत कमजोर होता है। बेशक बेशक। जैसे जिस्म बीमार होते हैं, बदन को बीमारियां लगती हैं, तो हम बीमारियों के इलाज के लिए, अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट पेशेंट के पास जाएंगे, अगर आपको जो भी बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। इस तरह अल्लाह कहता है कि मैंने रूह को 3 तरह की बीमारियां रूह को लगती हैं, शिर्क, कुफ्र, नफाक। शिर्क मुशरक, कुफ्र काफर, नफाक मुनाफिक। खुदा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि शिर्क की बीमारी खत्म हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो ताकि कुफ्र की बीमारी खत्म हो जाए। मुनाफिक अभी भी बाकी है। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ो ताकि अंदर की मुनाफिकत खत्म हो जाए।
नतीजा आखिरी मजलिस में यही निकला कि इस्लाम की मुकम्मल हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुनाफिकत जाहिर होती है बुग़्ज़ अली के साथ। बेशक बेशक रसूल की वाज़ेह हदीस मैं तरफैन की किताबों में दिखाने के लिए तैयार हूं। रसूल ने फरमाया, ऐ अली, तुमसे मोहब्बत करेगा सिवाय मोमन के कोई नहीं, और तुमसे दुश्मनी सिवाय मुनाफिक के कोई नहीं रखेगा। बेशक 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 अगली हदीस का अगला हिस्सा मैं सुनाऊंगा तो आपको मजीद लुत्फ आएगा। फरमाया, ऐ अली, अल्लाह की दुश्मनी सीने में छुप सकती है, मुस्तफा की दुश्मनी सीने में छुप सकती है, लेकिन या अली तेरा मुकद्दर अजीब है, तेरा दुश्मन तेरी दुश्मनी सीने में छुपा ही नहीं सकता। लिहाजा अगर तीन मजलिसों की दाद एक ही सूरत में देना चाहें तो फिर एक वादा कीजिएगा, अगर आपने पूरी जिंदगी कहीं मुनाफिक का चेहरा अपनी जिंदगी में देखना हो तो जहां भी बैठे अमीर अल मोमिनीन के फजाइल पढ़ा करें। सामने वाला बंदा ना भी बोले आपको चेहरा बता देगा कि मुनाफिक है। इसलिए कि जैसे जैसे फजाइल पढ़ते चले जाएंगे उसके चेहरे की रंगतें तब्दील होती चली जाएंगी। क्या कहने। इसलिए तो मैं हर मजलिस में कहा करता हूं, जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक के जलने की एक ही अलामत है कि उसके सामने खुल के फजाइल अली पढ़ो। फजीलत अली मुनाफिक के चेहरे को अयां कर देती है, क्योंकि अली की दुश्मनी सीने में नहीं छुपती, चेहरे पे आ जाती है, और जब वो चेहरे पे आती है तो चेहरे पे आके वो मां का किरदार बता देती है। बेशक क्या बात। इंशाअल्लाह मेरा मालिक जनाबे सैयद इंतसार शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए कि जिनके तवस्सुल, जिनके वसीला और फैज के साथ मैं हम फासिलों की कैद से निकल के बिला फसल के मानने वाले एक फासले को खत्म करते हुए आप तक ये फजाइल के मोती जहां तक मेरी कोशिश है मैं पहुंचा सकूं। मेरा मालिक उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाली जो मजालिस हैं, जो सैरोजा मजालिस इसके बाद आएंगी, उनमें जो मौजू मुझे दिया गया है वो अमीर अल मोमिनीन की विलायत के वो छुपे हुए राज हैं जो अभी तक मिंबरों से बयान नहीं किए गए, जिसमें अमीर अल मोमिनीन के खुतबतुल बयान से लेके अमीर अल मोमिनीन की हदीस मारिफत और हदीस नूरानिया तक आपके सामने कोशिश करूंगा कि वो इल्म के और मारिफत के मोती जो किताबों में आज तक छुपाए जा रहे हैं वो आपकी समातों को हदिया किए जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आज के दौर में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम है विलायत अली। बेशक। कभी जिंदगी में ये ना समझिएगा हमारे पास सेंटर नहीं, हमारे पास इदारा नहीं, हम थोड़े लोग हैं। तन्हा जितनी तन्हाई नसीब हो समझना उतना अली के करीब हो रहे हैं। सलामत रहे। दुनियादारी अली से दूरी की अलामत है, ज्यादा ओहदों का होना अली से दूरी की अलामत है। जब हमारे आइमा ने ही दुनिया को कबूल नहीं किया तो अपने चाहने वालों को दुनिया से दूर रखते हैं। हमारा इम्तिहान सिर्फ वो अकीदे पे लेते हैं कि ये अपने अकीदे पे कितनी इस्तकामत दिखाते हैं। कोशिश कीजिए इस्तकामत इतनी दिखाइए, हर चीज छोड़ दीजिएगा लेकिन जिंदगी में अमीर अल मोमिनीन की विलायत को न छोड़िएगा। एक लम्हे के लिए भी कभी अली वलीउल्लाह के लिए अपने ज़हन के किसी कोने में एक हल्का सा शक भी न लेके आइएगा। अमीर अल मोमिनीन को ऐसे ही तस्लीम कीजिएगा जैसे कुरान की इज्जत को तस्लीम किया जाता है, नबी की रिसालत को तस्लीम किया जाता है और अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम किया जाता है। इस अली वलीउल्लाह की खातर अली की औलाद का बड़ा नुकसान होगा। इस अली वलीउल्लाह की खातर बेटे जंगलों में मारे गए और बेटियां बाजारों में आ गई। सैरोजा मजालिस की आज इख्तितामी मजलिस है। आज की मजलिस में कुछ शहजादी का तज़किरा करें जो बाप के बाद बाप की जीनत थी और बाप के बाद रोती हुई मदीना में वापस पहुंची। ये
मौला अमीर अल मोमिनीन की शेर दिल शुजा का बेटी जब मदीना वापस पहुंचती है तो मदीना पहुंच के बशीर इब्न जज़लम से कहा जाता है कि जाओ मदीने की गली में जाके ऐलान करो कि मदीने वाले सरदार वापस आ गए। बशीर इब्न जज़लम जाके मदीना के मरकजी चौक में कहता है या अहल मदीना कद क़ुतिल हुसैन बिरर्ज़ करबला, मदीना वालों मदीने का हुसैन मारा गया और उसका खानवादा वापस पलट गया। बशीर इब्न जज़लम ऐलान भी कर रहा है, रो भी रहा है, गली से गुजर भी रहा है। गली से गुजरते हुए एक ऐसे के दरवाजे के सामने से बशीर इब्न जज़लम का गुजर हुआ जहां से एक ज़ईफ़ा पर्दा उठा के बाहर आई, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई, हाथ में कसा था, कमर झुकी हुई थी। बशीर के घोड़े के सामने आके कहती बशीर कौन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी हुसैन मारा गया। उस बीबी की आवाज है बशीर मदीना में बहुत से लोग हुसैन के नाम से रहते हैं, बता किस हुसैन की बात कर रहा है? फरमाया बीबी हुसैन इब्न अली मारे गए, रसूल के बेटे, सैयदा के लाल। बीबी देखे कहती मेरा हुसैन मारा गया? जब मेरा हुसैन कहा बशीर देखे था बीबी मन अंते तू कौन है? आवाज पर्दा कर, मैं अब्बास की माँ उम्मुल बनी। आप जितने सखी अब्बास के नौकर बैठे, अब्बास की नाम माँ का नाम आना था। बशीर ने दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखे का बीबी अपने अब्बास का पुरसा लीजिए। बीबी रो के कहती है बशीर मेरा अब्बास भी मारा गया? आपका अब्बास मारा गया। बीबी रो कहती बशीर मुझे बता सकता है कि अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर रो के कहता बीबी 9 लाख ने आपका गाजी घोड़े से गिराया। रो के कहती मैं नहीं मानती, 9 लाख से गाजी नहीं गिरता। मुझे पता जब अब्बास को घोड़े से गिरा तो जख्म कहाँ लगा था? फरमाया बीबी पेशानी पे लगा था। फरमाया मेरे अब्बास से ज्यादा जन्नों का मजाज कोई नहीं समझता था। जब अब्बास की पेशानी पे गुर्ज लगा अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर रो कहता बीबी हाथ होते तो रोकता, तेरे तो अब्बास के हाथ ही नहीं थे। रो के कहती तलवार कहाँ थी? फरमाया हुसैन ने उठाने की इजाजत नहीं दी। रो कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारे गए, ज़ैनब भी कैद हो गई। ऐलान पहुंचता पहुंचता हुसैन की उस बेटी के पास चला गया जिसने 28 रजब को रोते हुए हुसैन को विदा किया। इस बेटी का नाम फातिमा और सुगरा है। ये वो शहजादी है जिसने बाप को 28 रजब को रोती हुई आंखों से विदा किया था। खुश्क आंखों से दूर तक किसी चीज को देखा जा सकता है, लेकिन अगर आंख में आंसू हो तो धुंधलाहट दूर की चीज को नहीं दिखाती। जब काफिला घर से निकल गया तो इसने थोड़ी दूर ही काफिले को जाते हुए देखा। इधर हुसैन का काफिला मुड़ गया, इधर सुगरा वापस घर की तरफ पलट आई। बीबी सुगरा का घर की तरफ पलट के आना था। ये किताबें कहती हैं कि थोड़ी दूर काफिला इस्मत पहुंचा। मौला हुसैन की आवाज है अब्बास मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी चाहता है मैं एक बार सुगरा को वापस मिल के आऊं, अल्लाह जाने मेरी बेटी की हालत क्या होगी। हुसैन ने अपने घोड़े को वापस किया। हुसैन रोते हुए जब दोबारा मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचे, हुसैन भागते हुए घोड़े से उतरे। जब हुसैन ने सिहने ज़हरा में अपना पहला पांव रखा, आवाज सुगरा सुगरा बाबा तुझे दोबारा मिलने के लिए आया है। कहीं से भी सुगरा की आवाज नहीं आई। मौला हुसैन ने कब्र रसूल पे देखा, कब्र रसूल पे भी सुगरा नहीं थी। मौला हुसैन रोते हुए सुगरा को तलाश कर रहे थे। या दीवार पे लहू के छींटे पड़े थे, उन्हीं छींटों को देखते देखते हुसैन की चीख निकल गई। जहां अकबर रेत पे अपने पांव का निशान लगा के आया था, वहां मुंह रख के कह रही थी अकबर मुझे शादी पे जरूर बुलाना, अकबर तेरी बहन तेरी जुदाई में मर जाए। उसी फातिमा सुगरा को जब खबर मिली कि सादात वापस आ गए, ये कनीजों के नरगे में सैयदुल साजिदीन को लेने के लिए घर से निकली। इधर हुसैन की बेटी का निकलना था, उधर मौला सजाद रस्ते में आके बैठ गए। रस्ते में मौला सजाद का बैठना था। कनीजों की आवाज आई बीबी रुकिएगा, रस्ते में कोई मुसाफिर बैठा है। एक कनीज चलती हुई आई बीबी सुगरा की, आगे मौला सजाद से कहती मुसाफिर रास्ता छोड़, हमारे आका की बेटी आ रही है। मौला सजाद रोके कहते पर्दे से ज्यादा वाकफ मेरा कौन होगा, मैं अपने आंखों पे हाथ रखता हूँ, अपनी बीबी को कह कमर के पीछे से गुजर जा। वो कनीज देख कहती कैसे गुजारूं, तुझे नहीं पता वो अब्बास की भतीजी है, अब्बास का नाम आना था। सखी सजाद ने अपने जख्मी हाथ जमीन पे रखे, आवाज नाम उसका ले दिया है, अब मुझ पे खड़ा होना वाजिब हो गया है। या पीछे से बीबी सुगरा की आवाज आई कनीज को बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सजाद से मिलता है। ये बोला है तो मुझे मेरा सजाद याद आ गया है। चंद कदम के फासले बीबी सुगरा गई थी। या मौला बाकर की आवाज आई बाबा मुझे इजाजत दें, मैं फुफ्फी को बता के आऊं जिससे पर्दा करके आ गई वो तेरा भाई सजाद है। इधर मौला बाकर को इजाजत मिली। मौला बाकर ने बीबी सुगरा के
दामन में हाथ डाला। बीबी सुगरा देख के कहती बच्चा क्यों मेरे पास आया है? रो के कहा फूफी पहचान में तेरा बाकर हो। जब कहा फूफी पहचान में तेरा बाकर हो, जनाब सुगरा रो कहती अगर तू बाकिर है मुझे बता तेरा बाबा सज्जाद कहाँ है? जिससे पर्दा करके आ गई है वो तेरा भैया सज्जाद है। बीबी सुगरा दौड़ती हुई आई, सज्जाद के गले में बाहें डाली, रो के कहा मुझे सिर्फ इतना बता तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? मौला सज्जाद की आवाज है अश्शाम अश्शाम।